Hello and welcome dear student. Myself Vishal Chaudhary and today I welcome you in this beautiful video. आज हम पढ़ेंगे ग्लिम्सेस ऑफ इंडिया फर्स्ट फ्लाइट 10th क्लास की बुक से है एंड दिस इज द थर्ड पार्ट ऑफ योर फर्स्ट फ्लाइट बुक नेम्ड टी फ्रॉम असम बाय अरूप कुमार दत्ता. तो अरूप कुमार दत्ता इज द ऑथर ऑफ this chapter dear student. So let's take a move for the here you can look. This is the biography of about the author. Here we can say, so here dear student, first of all, the author of this chapter Arup Kumar Datta, born on July 2 1946 at Jorhat, Assam in eastern India. Arup Kumar Datta did his major and master in English literature from Delhi University, and after that he returned to Jorhat to teach English at JB College for several years. Before taking up writing as a full-time career, दत्ता मेड अ परमानेंट प्लेस इन द हार्ट ऑफ चिल्ड्रन विद हिज वेरी फर्स्ट बुक. क्योंकि इन्होंने शुरुआत में कुछ बुक्स भी लिखी थी तो लोगों के दिलों में, बच्चों के दिलों में इनके लिए एक बहुत बड़ा प्लेस था. काजीरंगा ट्रेल इन 1978 में इन्होंने लिखी एंड आफ्टर विच देयर वॉज नो लुकिंग बैक. उसके बाद इन्होंने कभी पीछे मुड़ के नहीं देखा था. द बुक नॉट ओनली वॉन प्रेस्टिजियस अवार्ड्स बट was also translated into many languages, both Indian and foreign, including Japanese, German, Russian, Hungarian, and Italian. Kaziranga Trail was followed by other award-winning books, The Blind Witness, Smack Revenge, The Lure of Jangrila, which won a national award, and the many others. Two of his books have been included in Literature of the World series by the Ashi Simon. So these are some kind of important work which was done by author, and how the significant or important place they have in the society. So let's move further. So dear student, in this beautiful chapter we will discuss some of the main important events of this chapter. The name Tea from Assam. So basically, first of all, here we can say here is a two character, one named Pranjal and one named Rajbir. So both are the student in Delhi school and both are fast friend. So here Pranjal, a youngster from Assam, and Rajbir's classmate in school in Delhi. And Pranjal's father is the manager of tea garden in Upper Assam, and Pranjal has invited Rajbir to visit his home during the समर वेकेशन. तो यहाँ पर क्या होता है कि जो प्रांजल है वो एक यंगस्टर है, असम से आया हुआ, और राजवीर का क्लासमेट है एक स्कूल में जो स्कूल दिल्ली में है. प्रांजल के जो फादर हैं वो मैनेजर है टी गार्डन में अपर असम में, एंड प्रांजल इनवाइट करता है राजवीर को कि गर्मियों की जो वेकेशंस होती हैं उनमें वो उसके साथ असम विजिट करे. डियर स्टूडेंट, लेट्स हैव अ लुक ऑन द मॉडल ऑफ दिस लेसन. Rajbir, the main point is that Rajbir and Pranjal on the way to Assam. So when they were going to the Assam on that time, this is the encounter of that time. So here Rajbir and Pranjal were traveling to Assam. A tea vendor called at the railway platform. Tea vendor called Chai Garam Chai, and they took tea and sipped it. Rajbir told Pranjal that over 80 crore cups of tea are drunk every day throughout the world. कि जब वो असम के लिए ट्रैवल करते हैं दोनों रेल से, तो रास्ते में वो देखते हैं कि एक टी वेंडर होता है जो चिल्ला रहा था चाय 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 गरम, एंड वो चाय लेते हैं और उसको पीते हैं. देन राजवीर कहता है प्रांजल को कि क्या तुम्हें पता है कि इस दुनिया में 80 करोड़ चाय के कप डेली पिए जाते हैं. अब जैसे वो आगे चलते हैं तो टी गार्डन सीन्स आते हैं. तो राजवीर लुक एट द ब्यूटीफुल सीनरी आउटसाइड द ट्रेन, एंड प्रांजल kept reading his detective book. There was greenery outside. Soon the soft green paddy fields gave way to tea bushes. अब क्या है कि जो राजवीर है वो ब्यूटीफुल सीनरी को देख रहा है बाहर की, जैसे कि माउंटेन्स हैं, रोलिंग हिल्स और टी गार्डन्स वहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, बहुत बड़े बड़े मैदान. वहाँ पर पैडी फील्ड्स भी हैं टी बुशेस के रास्ते में, एंड देयर वर शेड्स ट्री ऑल्सो ओवर द एरियाज, और वहाँ पर जो पेड़ हैं उनकी घनी छाया भी है. मीन्स ये जो प्लेस है वो माउंटेन से, ग्रीनरी से और बड़े बड़े जो ट्रीज़ हैं उनसे भरा हुआ है. यहाँ पर पैडी और साथ ही टी बुशेस भी देखने को
मिल जाती हैं. अपार्ट ऑफ दैट, इन द डिस्टेंस देयर वॉज एन अगली बिल्डिंग. इट वॉज अ टी गार्डन. अगली बिल्डिंग एंड इट वॉज अ टी गार्डन. और इनके आगे एक अगली सी बिल्डिंग भी थी. अगली हियर रेफर टू दैट इट इज़ मेड इन द टाइम ऑफ कॉलोनियल पीरियड. तो ये बहुत पुरानी बिल्डिंग है, इसलिए थोड़ी सी रैग्ड या भद्दी सी दिख रही है अमंग द टी गार्डन हियर. Dear student, here you can have a look here that this is the tea garden. Generally such kind of the tea garden are found in the Assam, and these are the peoples. These are the peoples who are plucking leaves from here. जो यहाँ से पत्तियों को तोड़ रहे हैं चाय की. आप देख सकते हैं यहाँ पर आप देख सकते हैं. So now dear student, we will talk about legends behind tea. So they were in Assam. अब एक्चुअली वो असम में चले जाते हैं. द टी कंट्री है, जिसको हम टी कंट्री के नाम से भी जानते हैं. एंड असम हैज़ द लार्जेस्ट कॉन्सेंट्रेशन ऑफ टी प्लांटेशन इन द वर्ल्ड. राजवीर टोल्ड प्रांजल दैट नो वन रियली न्यू हु डिस्कवर टी एंड देयर वर मैनी लीजेंड्स अबाउट इट. तो राजवीर कहते हैं प्रांजल को कि एक्चुअली जो किंवदंतियाँ हैं वो तो बहुत सारी हैं, चाय का ओरिजिन कैसे हुआ, बट कोई नहीं जानता एक्चुअल में कि व्हाट इज़ द रियल फैक्ट बिहाइंड दिस. तो यहाँ पर दो लीजेंड्स दी गई हैं. वन इज़ चाइनीज़ लीजेंड एंड अनदर वन इज़ इंडियन लीजेंड. तो सम टाइम इट कैन ऑल्सो बी आस्क्ड इन योर एग्जामिनेशन कि व्हाट इज़ द चाइनीज़ लीजेंड बिहाइंड द डिस्कवरी ऑफ टी और द इंडियन लीजेंड बिहाइंड द डिस्कवरी ऑफ टी. तो आई होप दैट कि आप बहुत इसको ध्यान से देखेंगे. तो सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पे जो चाइनीज़ लीजेंड है उसके बारे में. तो यहाँ पर क्या है डियर स्टूडेंट, जस्ट वेट अ मिनट. यहाँ पर हियर अ चाइनीज़ एम्परर ऑलवेज बॉइल्ड वाटर बिफोर ड्रिंकिंग इट. एक चाइनीज़ एम्परर थे तो वो हमेशा पानी को पीने से पहले उबालते थे. एंड क्या हुआ, वन डे अ फ्यू लीव्स ऑफ ब्रांचेस, एक पेड़ की शाखा से कुछ लीव्स थी जो पानी में गिर गई, मीन्स बर्निंग अंडर द पॉट. पॉट के अंदर ही जल गई एंड फेल इनटू द वाटर. इट गेव अ डिलीशियस फ्लेवर. और उनके पानी के साथ बॉयल होने की वजह से एक डिलीशियस फ्लेवर मिलता है. दीज वर टी लीव्स. और बाद में इन्हीं को टी लीव्स कंसीडर किया गया कि ये टी लीव्स ही थी. इंडियन लीजेंड अबाउट दिस व्हाट इज़ दैट के एक एसेटिक हुए हैं बोधि धर्मा, जिनका नाम था बौद्धिस्ट मॉन्क इनको कह सकते हैं. इन्होंने क्या किया था कि ही कट ऑफ हिज आईलिड्स बिकॉज ही फेल्ट स्लीपी ड्यूरिंग मेडिटेशन. क्योंकि मेडिटेशन करते वक्त इनको नींद आती थी. एंड जब इन्होंने अपनी आईलिड को काटा तो बिकॉज ऑफ दैट 10 टी प्लांट्स ग्रीव आउट ऑफ हिज आईलिड. तो उनकी आंखों की जो पलकें होती हैं उनमें से 10 चाय के पेड़ उगे, पौधे उगे. एंड दीज लीव्स व्हेन पुट इन हॉट वाटर एंड ड्रैंक वेनिस्ड स्लीप. और ऐसी मान्यता भी है कि जब इन लीव्स को पानी के साथ बॉयल किया जाता है और पिया जाता है तो ये नींद को भगा देती है. जैसा कि जनरली हम सब लोग भी कहते हैं कि चाय नींद आ रही है तो चाय पी लीजिए. अनदर इम्पॉर्टेंट थिंग है कि टी एंड चाइना का क्या आपस में रिलेशन रहा है. यहाँ पे बताया गया है कि राजवीर ने आगे कहा दैट टी वॉज फर्स्ट ड्रंक इन चाइना. कि चाइना में सबसे पहले चाय को पिया गया था बिकॉज इट वॉज एज फार बैक एज 2700 BC, मीन 2700 BC पहले चाइना में इसको पिया गया. और वर्ड्स लाइक जैसे चाय है, चीनी है, ये वर्ड भी चाइनीज़ ही हैं. टी केम टू यूरोप इन द 16th सेंचुरी. कि जो चाय आई थी यूरोप में वो 16वीं शताब्दी में आई थी. एंड इट वॉज ड्रंक मोर एज मेडिसिन देन अ बेवरेज. और उस टाइम की अगर हम बात करें तो जो चाय थी वो एक मेडिसिन की तरह से यूज़ की जाती थी एक बेवरेज के मुकाबले. एंड नाउ दे आर अबाउट टू रीच दियर डेस्टिनेशन. सो व्हाट इज़ दैट के बोथ ऑफ देम ड्रॉप्ड एट मरियानी जंक्शन. वो मरियानी जंक्शन पर वहाँ उतरते हैं. एंड नाउ दे वर ड्राइवन टू देखियाबाड़ी. और देखियाबाड़ी को वो जाते हैं जहाँ पर टी एस्टेट था. ऑन बोथ साइड ऑफ द रोड, सड़क के दोनों ओर देयर वर एकर्स एंड एकड़ ऑफ टी बुशेस. यानी कई कई एकड़ में सड़क के दोनों ओर चाय के बागान थे. वेमेन विद बैम्बू बास्केट वर
प्लकिंग द न्यू लीव्स फ्रॉम दैम, और जो वेमेंस थी वहाँ पर वो उन पेड़ों से, उन बागानों से पत्तियों को चुन रही थी, मीन्स चाय की पत्तियों को चुन रही थी। आगे यहाँ पर आप देख सकते हैं डियर स्टूडेंट कि ये एक टी प्लांटेशन, ये एक चाय का बागान ही है, और यहाँ पर कुछ वेमेंस हैं जिनकी पीठ पर आप ये बैम्बू बास्केट देख सकते हो, जिसमें ये कैरी करती हैं लीव्स को चुन करके। आई होप कि आपको आइडिया मिल गया होगा। तो चलिए डियर स्टूडेंट नेक्स्ट चलते हैं। अब यहाँ पर देर आर सम क्वेश्चन ऑल्सो, एंड व्हाट इज दैट, लुक हियर। फर्स्ट क्वेश्चन इज दैट कि व्हाट डिड प्रांजल टोल्ड राजवीर अबाउट असम। तो आंसर इज दैट कि प्रांजल टोल्ड दैट असम इज heartland of tea cultivation of India. In their commercial crop, Assam has the largest concentration of plantation in the world. It export tea to other countries in the world. तो ये आपको ध्यान रखना है, इम्पोर्टेंट है। अनदर है कि व्हाट इज द चाइनीज लीजेंड अबाउट टी। तो चाइनीज एम्परर लाइक टू ड्रिंक बॉयल वाटर, वंस वाइल बॉइलिंग द वाटर gave a delicious flavor. They were tea leaves, since then the leaves were used as a beverage. तभी से इनको पिया जाने लगा था। दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है डियर स्टूडेंट, एंड यहाँ पर हियर आर टू मोर क्वेश्चन। के फर्स्ट थिंग इज दैट के राइट डाउन द बौद्धिस्ट लेजेंड अबाउट टी। तो वंस अ बौद्धिस्ट एसेटिक वॉज मेडिटेटिंग, एंड क्या हुआ कि ड्यूरिंग हिज डीप मेडिटेशन वो सो गए। तो द मॉन्क बिकेम फ्यूरियस ऑन हिमसेल्फ, उसको खुद पे गुस्सा आया और उन्होंने ना अपनी आईलिड्स को काट लिया, एंड थ्रू देम ऑन द ग्राउंड, और उसको ज़मीन पर फेंक दिया। देयर ग्रू 10 टी प्लांट्स, वहाँ पर 10 चाय के पौधे उगे, एंड देयर लीव्स कैन रिमूव स्लीप, जैसा कि हम लोग जानते भी हैं। अनदर थिंग है कि हाउ आर द टी लीव्स कलेक्टेड इन असम, उसको असम में कैसे कलेक्ट किया जाता है। बेटे चारों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इनको ध्यान से आप देख लेंगे, याद भी करेंगे। तो टी लीव्स कलेक्शन इज अ लेबर इंटेंसिव वर्क इन असम। दिस वर्क इज डन बाय लेडीज। Ladies in group carry bamboo baskets on their backs. They wear plastic apron. They pluck tea leaves and collect them into their basket. So these are important question. I hope guys के chapter आपको समझ आया होगा. And if you have any query, comment, suggestion, so just feel free to message me and do your comment in the comment box. So dear student, this was your chapter, A Tea from Assam. Thank you and have a nice day, and do subscribe the channel.